स्वामी जी एक हाँ हाँ हाँ, अरे रुका करिए। अच्छा एक इधर जरा साथ में रहिए एक बार में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवामो अन्तिलो आदित्यो रादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानिकवह्म योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः लोकधयः शान्तिः वानशपातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्त्यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। साइड से देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम, आपका हार्दिक स्वागत है। नगर रमेश चंद्र गुप्ता जी, श्री कुंदन लाल भाटिया जी, श्री प्रदीप गोयनका जी और आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। कर रहा है क्या है यह मूवमेंट और किसने इसे प्रारंभ किया, आइए देखते हैं। Second greatest of reading. He pursued the liberal arts as he stayed at their ashram and watched them critically 24/7. He was impressed by the dynamism and the discipline of a spiritual life and came to know the science of Vedanta in a totally new light. He was convinced by its methodology and inspired by its ability to uncover the divinity hidden in every heart. Very soon, on the auspicious Shivratri of 1949, Swami Shivananda initiated Balakrishna Menon into sannyasa and named him Swami Chinmayananda. Thus began the journey of a legend, the making of a master, the founding of a life beyond lifetimes.
is understanding the mind, an awakening in yourself, an unfolding, a growth in ourselves to grow higher. And naturally you leave these petty, paltry temptations of the toils of life and you start living for a higher purpose in life. And there is a great satisfaction to man when he lives in this way, pursuing the higher pursuits of life. As a young Swami, wanting scientific answers to religious principles, Swami Chinmayananda headed for Uttarkashi to study Vedanta under Swami Tapovanam. From an atheist, he transformed into one of the greatest Advaitins in a short span of just 2 years. His great love for India, his vision for its culture, his value for Hinduism and his compassion for the masses urged him to come down from his peaceful abode in the Himalayas and share his fulfillment, just like the flowing Ganges. His first talk was in Pune for a small audience of just 4 people, including the speaker. He was the first person ever to talk on the scriptures in English. Soon, his great vision was acknowledged by more and more people, and thousands started attending his discourses. Thus, Swami Chinmayananda brought about a complete cultural revival. Due to his efforts, the Bhagavad Gita has today become a popular guidance manual for a purposeful and peaceful life. He brought the Gita from the puja room to the living room of the common man, to the boardroom of the corporates, to the campuses of the youth, and to the playgrounds of the children. Each individual is a unit in this universe, in this world. And all these individuals put together is called the community or the nation or the world itself. Apart from the individuals, there is no world. You take what we want is the world must change so that I may be happy. This is called a materialistic point of view. We have lived in it for thousands of years. We have been struggling to beautify the world and not beautify you. Through individual perfection alone, world perfection can be aspired. USA, UK, Australia, Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Germany, France, Sri Lanka, Mauritius, Israel, South Africa, Switzerland, Canada, यहाँ तक कि चाइना, रशिया, कुवैत, दुबई, मस्कट जैसे देशों में भी हर धर्म वर्ग के लोगों में मानव को सही अर्थों में मानव बनाने वाले इस सनातन ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। आप में शायद कुछ लोगों को ज्ञात भी होगा कि गुरुदेव विश्व हिंदू परिषद के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। हमारे आचार्यगण विराजमान हैं, उन्होंने अपना जीवन ही मानवता के लिए समर्पित कर दिया है, जिनके माध्यम से हर उम्र के लोग, बच्चों के लिए शिशु विहार, बाल विहार, युवाओं के लिए युवा केंद्र, मिड एज के लिए चिन्मय सेतुकारी, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय मंडल, वरिष्ठ जनों के लिए वानप्रस्थ संस्थान, ग्रामीण विकास के लिए कौर, 100 से अधिक चिन्मय विद्यालय, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज, चिन्मय विश्व विद्यापीठ, हॉस्पिटल्स आदि के द्वारा
1967 में कानपुर आए और इस रोशनी डालता अगला वीडियो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चिन्मय मिशन की कानपुर केंद्र इकाई विगत 55 वर्षों से गुरुदेव के सभी कार्यों में अपना योगदान देता आ रहा है। गुरुदेव गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी, स्वामी शंकरानंद जी, स्वामी सुबोधानंद जी, स्वामी गंगेशानंद जी और स्वामी गोकुलानंद जी के स्नेह और योगदान से ही यह केंद्र पोषित हुआ है। हमारे वर्तमान आचार्य स्वामी राघवानंद जी इसके विकास में संलग्न हैं। कानपुर केंद्र में ऑनलाइन वेदांत कक्षाएं, बाल विहार, देवी ग्रुप के कार्यक्रम, केंद्र में नृत्य कक्षा के अतिरिक्त वर्ष में एक बार किसी तीर्थ में आवासीय शिविर आयोजित होता है। नैमिषारण्य, जगन्नाथ जी पुरी, श्री द्वारका जी के बाद इस वर्ष यह शिविर 10 से 17 सितंबर तक मोक्षदायिनी नगरी हरिद्वार में होगा। कई वर्षों से नगर स्तर पर 2 ज्ञान यज्ञ भी होते हैं। इस वर्ष 18 से 23 नवंबर तक नासिक केंद्र के आचार्य पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी द्वारा संपादित होगा। गुरुदेव का उपहार मंधना आश्रम को दर्शाता अगला वीडियो। गुरुदेव ने कानपुर को ऐसा अनुपम उपहार दिया है जिससे हम सदैव रेडी रहेंगे। चिन्मय साधना आश्रम जो 90 वर्ष प्राचीन बनखंडेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट मंधना द्वारा संचालित हो रहा है, सुषमा से युक्त यहाँ भगवान बनखंडेश्वर महादेव जी अपनी समस्त सुंदरता से यहाँ विभूषित हैं। 1983 में यह स्थान गुरुदेव को प्राप्त हुआ। 1989 में गुरुदेव ने यहाँ नेशनल कैंप किया जिसमें देश विदेश के लोग यहाँ आए। पूज्य गुरुदेव ने नूतन व पुरातन का समन्वय करके अवकाश प्राप्त सीनियर सिटीजन्स को आध्यात्मिक वातावरण के साथ उद्देश्य पूर्वक जीवन व्यतीत करने हेतु यहाँ पितामह सदन की स्थापना करी। यहाँ का वातावरण और हरियाली मन को शांति देती है। शिवरात्रि को यहाँ आसपास के गांव से जन सैलाब उमड़ता है। यहाँ एक सुंदर गौशाला है जहाँ अति आधुनिक तरीकों से चारा, दूध आदि की व्यवस्था होती है। हर वर्ष निःशुल्क पौरोहित प्रशिक्षण सत्र चलता है। आज यहाँ वहीं के बटुकों ने वेद पाठ किया है। आज आप सभी भगवान बनखंडेश्वर महादेव जी के दर्शन हेतु अवश्य पधारें।
अब एक वीडियो उनका जो आज से व्यासपीठ पर भक्ति और ज्ञान की वर्षा कर इस ग्रीष्म ऋतु में चित्त को शीतलता प्रदान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे भगवान बार बार बोलते हैं यदि शोध स्पिरिचुअलिटी और इसी को सरल शब्दों में कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। वर्ष का प्रथम ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पिछले कई वर्षों से चिन्मय मिशन इंदौर के आचार्य पूज्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी पधार रहे हैं। इस वर्ष के गीता जी के दूसरे अध्याय पर आधारित विषय जीवन में दुख का कारण और उसका निवारण, इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। यद्यपि पूज्य स्वामी जी इंदौर से पधारे हैं, तथापि आप उनके प्रवचनों में अपनी मिट्टी की सुगंध महसूस करेंगे, क्योंकि वे अपने अवध क्षेत्र के ही हैं। गंगा यमुना के पावन प्रदेश में धर्मनिष्ठ विप्र परिवार में जन्मे, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा प्राप्त किया हुआ युवा आध्यात्म की ओर उन्मुख होकर सन 1998 में वेदांत के गुरुकुल सांदीपनी हिमालय हिमाचल प्रदेश जाकर हम सबके प्रिय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी व पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी से गीता उपनिषद आदि ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। विगत 25 वर्षों से पूज्य स्वामी जी उत्तर भारत के प्रमुख नगरों उड़ीसा व पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में सभी आयु के लोगों में अपने प्रेरणास्पद जीवन उपयोगी कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं। इंदौर और समीपवर्ती क्षेत्रों में तो मध्य प्रदेश सरकार आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए स्वामी जी से विचार विमर्श भी करती है। अब करतल ध्वनि से मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, फिर भी करतल ध्वनि से के साथ स्वागत करिए स्वामी प्रबुद्धानंद जी सरस्वती का। वेलकम स्वामी जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् येमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये बगल में एक हाँ ये सही है, बस फर्स्ट क्लास। हरिओम। वसुधा नीतू सिंह जी जैसे कर्मठ समाज सेवक की पुत्री, कानपुर नगर की विभूति, मानी शिक्षाविद, समाजसेवी व सफल व्यवसायी हैं। आपने कुछ समय तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 2018 में आपने शिक्षा व वर्तमान में आप उसकी सचिव भी हैं। आप विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, केशव माधव सेवान्यास में सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। श्री ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल कानपुर में आप कोषाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आपके अथक प्रयासों से कानपुर में रावतपुर गांव में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया जा रहा है। आपको पीएससी महिला उद्यमी का सम्मान प्राप्त हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी महानाट्य जानता राजा में के कानपुर में ऐतिहासिक मंचन में सह संयोजिका के रूप में आपकी अग्रणी भूमिका रही है।
मैं जब तक आपको बताना चाहूंगी कि आशीर्वाद में जो पुस्तक दी गई है वह चिन्मय मिशन का प्राण है। उसे लेकर ही गुरुदेव विश्व के 184 नगरों में गए और लोगों को उसकी अमूल्य शिक्षाओं से अवगत कराया। चिन्मय मिशन में अब तक उसकी 2 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये है होली गीता, जिसमें गुरुदेव को से उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी। उनके पश्चात उनके सुपुत्र श्री नरेंद्र सिंह जी, उनके सुपुत्र श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी का निरंतर संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि इस परिवार की तीसरी पीढ़ी भी आज मिशन में प्रवेश हो रहा है। आपका अभिनंदन है। आपसे अनुरोध है नीतू सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि किंचित शब्दों में आप हमें प्रबोधित करें। हरिओम। कि ईश्वर की असीम कृपा रही मेरे ऊपर कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ, फिर ऐसे परिवार में शादी हुई जहाँ पे मुझे शायद काम करने का मौका मिल रहा है। और उन्हीं सब बड़ों की कृपा है कि आज मैं आपके सामने आ खड़ी हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हम सब स्वामी जी को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपकी बहुत कृपा। जय सिया राम। मां प्रहासी अनेनाधितेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। श्री गुरु पद
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आइए गीता प्रारंभ करें। इसके पूर्व गीता ध्यानम जो हम लोगों की परंपरा है, जिनके पास भगवत गीता हो वो देखें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं अपनी बात यहाँ से प्रारंभ करूँगा। शरीर का कोई रोग होवे तो उसको फिजिशियन ठीक कर देता है। चोट लगी हो, घाव हो गया हो, बुखार आ गया हो, तो वो फिजिशियन के लिए आसान है। लेकिन आज के वर्तमान समय में, और आपसे सच बता रहा हूं, ये दुखती नब्ज है। युवाओं को देख रहा हूं, वृद्धों को तो खैर ही है, बच्चों तक को भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। और ये बड़ी भयानक स्थिति। हर घर में कोई एक दो व्यक्ति ऐसा मिल ही जाता है जो डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। घर का माहौल ठीक नहीं है। और इसको मेडिकल की भाषा में गए, फिर वो धीरे धीरे न्यूरोलॉजी एंड फिर लाइन बिगड़ने लगती है। स्टार्ट यहीं से हो रहा है। और मैं इस समय कई न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में हूं, भगवान की कृपा से। मैं उनसे कहता हूं कि इसका निदान क्या है आपको लगता है, और आप सच मानिए बोलते हैं इसका कोई निदान नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो?
यदि नींद नहीं आती है तो ऐसी गोली देती है जिससे नींद आती है। ज़्यादा तेज चलता है तो धीमे कर देते हैं, धीमे चलता है तो तेज कर देते हैं। ये रोग सही होने वाला नहीं है। इसकी जो दवा है वो हमारा विचार तंत्र है, हमारे आसपास का वातावरण है, वही इसको ठीक कर सकता है। आपसे बताऊं, दवा से मन में जो विकार आ रहे हैं, मनोगत रोग जो हैं, आप उसको दवा से कैसे ठीक कर सकते हो? और ये बीमारी अभी इस समय में जब से 4-5 साल देख रहा हूं, युवा तक जो 20-25 साल का व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, स्वामी जी, हमारे सन्यासी लोग भी हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत से साधु डिप्रेशन में है। साधु होने के बावजूद जी बीमारी साधु थोड़ी ना देखती है कि आपने लाल पहना है कि नीला। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की शैली में, सोचने की शैली में, व्यवहार की शैली में दोष है। और हम साधु समाज के लिए तो पूज्य बड़े बड़े जो साधु हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही कमेंट होता है, स्वामी जी हम साधुओं के लिए ये प्रवचन और ये जो भीड़ भाड़ है, ये पैसा है, ये ग्लैमर है, ये चाम है, ये फेसबुक और ये सोशल मीडिया, भोक्तये न तो मुक्तये, ये आपको भोग दे सकता है, मुक्त नहीं कर सकता। और ये भोग तब तक देगा तब तक आपके पास चमक है, आपके पास ओरेटरी है, आपके पास वाणी है, आपके पास लोग हैं। इतने सारे पूर्व के लोग थे, उनका क्या हुआ? एकांत में कहीं पड़े हैं, न कोई सेवा के लिए है, न कोई है, किसी औषधालय में चले गए तो किसी ने कोई दवा दे दी, ऐसे पड़े हैं। कभी एक समय के चमकते सितारे। क्या हुआ जॉर्ज फर्नांडिस का? क्या हुआ देवेगौड़ा का? ये चमकते सितारे थे। आपसे निवेदन करूं, समस्या का हल ये नहीं है। समस्या का हल सिर्फ दो जो मुझे दिखता है, एक तो जीवन शैली, दूसरा विचार तंत्र। आपकी सोच कैसी है, आपकी मान्यता कैसी है, उसको डील करने का जो प्रोसीजर है, क्योंकि हमें तुरंत की तुरंत चीजें इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, वो समस्या का हल नहीं कर सकती। और वो भी ऐसी समस्या जो जीवन परक समस्या हो। इसलिए सबसे अच्छा जो आपके पास टॉपिक रखा गया, जीवन में शोक या समस्या और उसका निराकरण। मैं कोशिश करूंगा चुन चुन के आपके सामने जो मेरे मस्तिष्क में आ सकता है, अध्याय 2 के संदर्भ से वो सामने रखूं। लेकिन आज प्रथम दिन एक भूमिका सामने रखता हूं। आपके सनातन संस्कृति के जो भी ग्रंथ हैं, आपसे बताऊं, वो एसी चैम्बर में बैठ के नहीं लिखे गए। वो एसी चैम्बर में बैठकर कलम तोड़ते हुए, चाय और कॉफी पीते हुए नहीं लिखे गए। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो भागवत हो, और आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता प्रकट कब हुई? युद्ध के वातावरण में। आज भी युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और यहीं पे कृष्ण है, और यहीं पे अर्जुन है, यहीं पे कौरव हैं, यहीं पे पांडव हैं। अच्छा देख लीजिए, अभी अभी दिन भर में अच्छी वृत्तियां कितनी आए? सच बताइएगा। अच्छी वृत्तियां, डिवाइन। मुझे सुधरना चाहिए, मुझे ये दोष है मेरे व्यक्तित्व में, मुझे और कुछ करना चाहिए, ये ऐसी डिवाइन वृत्तियां कितनी आई जीवन में आज के दिन? 1, 2, 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं होंगी। और खराब वृत्तियां कितनी आई? ये दो कौन है? बोलिए ना। पांडवों की संख्या कितनी थी? 5।
और कौरवों की संख्या वो 100 मत लेना, आपके पास 1000 भी हो सकती है। अच्छी वृत्तियां 5 थी, अब 1 या 2 या 3 आती हैं। ये कौरव यहां पर है, अभी भी है, पांडव यहां पर है, अभी भी है। तो युद्ध तो मैदान अभी भी आपके पास में है। युद्ध का मैदान कुछ और नहीं है जी, अंतःकरण युद्ध का मैदान है। और अब इसकी घमासान देखनी हो ना तो रात में सोते समय बिस्तर पर देखिए महाराज, जब नाइट लैम्प बंद हो जावे, आंखें बंद हो, क्या घमासान चलता है युद्ध। ये किया, ये नहीं किया, उसको ये बोलना, इसको स्ट्रेटेजी बनानी है, इसको नीचा दिखाना है, इससे पैसा खींचना है, तो ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इससे पैसा लाऊं। ले, माता पिता ने सिखाया था सोते समय हाथ पैर धो के आसन पर बैठकर, हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी ने तो हम लोग को केशवाय नमः, नारायणाय, माधवाय नमः एक माला जप करके कुछ भगवत गीता का स्मरण करते हुए तो नींद में जाए। कहाँ ऐसी नींद मिल रही जी, हम साधु लोग भी नहीं ले पा रहे हैं, आपसे सच बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन खड़ी की है, प्रवचन करना है, पैसा लाना है, माइक रखना है, सोशल मीडिया देखनी है, कर लो आप फिर। और यही ना बांधव जी, मनोज जी की टीस यही थी। आज का स्पिरिचुअल व्यक्ति व्यासपीठ पर कुछ और है स्वामी जी आफ्टर व्यासपीठ कुछ और है, और ये ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे लगता। कुछ रेयर लोग हैं, उनमें से तो अभी तो मैं उनका नाम ही लेता हूँ, स्वामी राजेंद्र दास जी, और रेयर पीसेस इनको देखने से आपको लगता है कि सीखना चाहिए कुछ। मैं आपसे कह रहा था अंतःकरण यही है, कौरव यही है, पांडव यही है जी। रही बात कृष्ण की, वो भी दिखा देता हूं आपको। बस आप सच सच उत्तर देते जाइएगा, रास्ता निकलता जाएगा। आपको नहीं लगता कि जब भी कोई गलत वृत्ति, गलत सोच, गलत काम कर बैठते हैं, मैं तो कहता हूं किसी को गाली दे बैठे, निकल गई, गलत सोच आ गई किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति भी, या मैं ऐसा कहूं कि एक साधु होने के नाते इससे धन खींच लिया जाए, ये वृत्ति आ गई, सहज है। लेकिन आपसे सच बताऊं, अंदर से कोई बोलता है यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, आप गलत कर रहे हो। ये कौन है बोलिए ना। अच्छा, ये आवाज किसके पास नहीं आती अंदर से? अभी आप आ रहे थे, एक चप्पल इधर फेंकते, एक चप्पल उधर फेंकते, धक्का देते, इसको अंदर से एक आवाज आएगी ना, अच्छा नहीं कर रहे हैं, सामान खत्म हो जा रहा है, पहले जल्दी लूट लो, खत्म हो जाएगा। अंदर आवाज, ये गलत वृत्ति है। ये आवाज किसकी है? शास्त्र कहता है वो बैठा हुआ जो अंदर अंतर्यामी है ना, ये आवाज उसकी है। और सही काम करने पर दुनिया ना देखे, आपका नाम पेपर में ना आवे, पेपर में फोटो ना छपे, हाँ जी, लेकिन अंदर आवाज आती है, वेल डन, कब आज तुमने 5 माला कर ली, वेरी गुड, ये अध्याय रट लिया, गीता का ये स्वाध्याय कर लिया, अति सुंदर। ये आवाज किसकी आ रही है? वो कोई नहीं, वो गुड़ाकेश, वो कृष्ण, वो वृंदावन बिहारी, वो बाके बिहारी यही है, अभी है, शेप में नहीं दिख रहा है। तो मैंने अपनी बात जो प्रारंभ की कि हमारे सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ एसी टावर और एसी चैम्बर में बैठकर नहीं लिखा गया, रणक्षेत्र में लिखा गया। रामायण राम और रावण के घनघोर युद्ध का परिणाम है। और एक बात और कहूं, आपको सुनने में बड़ा, हमारे यहाँ अहिंसा पाप है, हम ऐसा कभी नहीं सिखाते, सॉरी, अहिंसा पाप है। ये कहीं आपको कोई
सनातन धर्मी नहीं कहेगा। कहीं हिंसा करना भी पुण्य है। सी साम दाम और उसके बाद तीसरा क्या है? दंड। राम ने युद्ध करके मारा है जी। और मैं ये भी कहता हूं कि ब्राह्मण को मारा है इसलिए उनको ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा जी, वो भी निवारण किया, लेकिन मारा। कृष्ण ने तो खूब मारे, जम के मारे। तो शिशुपाल, जरासंध, ये लकीर के फकीर मत बनिएगा। हिंसा करना पाप है ना? तो ये जो आपके सामने भगवत गीता है महाराज, ये रणभूमि में निकली है। गजब का रण हो रहा है। और अच्छी बात ये है, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, मैं आज की मैनेजमेंट की भाषा में बोलता हूं, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगे हुए हैं, खूब तमगे पहने हुए हैं आपने। दुनिया आपको जानती है, आपके पास यश है, आपके पास धन है। ऐसा अर्जुन सी कौशल से भरा हुआ जी, उसके बाद वो रोता है। इतने वैल्यूज होने के बावजूद जी, गांडीवम संसृते हस्ता त्वचैव परिदह्यते भ्रमतीव च मे मनः। आप में तो इतनी पर्सनालिटी में गुण, हमको लगता है पर्सनालिटी में गुण आ गए तो मैंने दुनिया को जीत लिया। अर्जुन की क्या हाल हुई? आप इसके पीछे मत भागिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये थोड़ी देर के लिए है। इतने गुण भरे होने के बावजूद, इतने कौशल भरे होने के बावजूद अर्जुन रो रहा है। और आप पढ़ना, मैंने इसको स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस ने इसको बोला, जो अर्जुन को जिस समय हुआ था, जो रथ में बैठते तो शरीर में पसीना आ रहा है, त्वचैव परिदह्यते भ्रमतीव च मे मनः, ये न्यूरोसिस है मेडिकल की भाषा में। ये रामकृष्ण परमहंस की कमेंट्री में पढ़ना, इसलिए वो मुझे ऑथेंटिक लगी। इन न्यूरोलॉजी जो शरीर के ये सिम्टम है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस। इतना होने के बावजूद यस इट इज पॉसिबल। ये मत कहना कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बड़े अमीर हैं, इनको दुख नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ों बड़ों को दुख हो सकता है। तो ऐसा सर्व गुण से भरा हुआ, कौशल से भरा हुआ अर्जुन, हाँ जी, और वो युद्ध क्षेत्र में मैं कह सकता हूं डिप्रेशन में आ रहा है, रो रहा है। बस एक अच्छी बात है उसके जीवन में, उसके पास कृष्ण जैसा गुरु और कृष्ण जैसा सखा है। आप भी ये याद रखिएगा, जब जीवन के सब दरवाजे बंद हो जाएं तो हमारे गुरुजी बोलते थे एक दरवाजा खुला रहता है। कोशिश कीजिएगा नॉक करने की, इसको नोट करके रख लीजिए। सुसाइड की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके सब दरवाजे बंद होंगे, ये याद रखिएगा। बड़े अच्छे समय से आप गुजरे हैं तो थोड़ा सा दुख भी लेना पड़ेगा। ये नहीं होता जी मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलता। ये कर्म क्षेत्र ऐसा है मनोज जी, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए। ये जीवन ऐसा ही है, यही सच्चाई है। आपसे बताऊं, इंक्लूडिंग साधु जगत ऑल्सो। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, हाँ जी, एक रेख लागी है, पैलागी है, पैलागी है। और वो परेशान करने वाला समाज नहीं होगा, आपके घर परिवार में ही कोई ना कोई होगा जो आपको दिन में तारे दिखा देगा और ये विवश कर देगा कि गीता पढ़नी चाहिए। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो प्रेतराज, वो भूतनाथ आपके घर में ही हैं, ढूंढिएगा, कोई ना कोई होगा जो आपको इस मार्ग में लगा देगा। बट ये बात को आप इन्वर्टेड कामा में रखिएगा, जब जीवन के सब रास्ते बंद हो जाएं, कोई एक रास्ता खुला है। उस रास्ते का नाम है शरणागति, परमार्थ, भगवान की भक्ति।
कोई संत मिल जाए तो मैं तो कहता हूं वो मिल जाए तो आधा रास्ता आपका ले लेगा। एक कोई मिल जाए, कोई सही व्यक्ति। इसीलिए तो शबरी को बोला प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिल तो जाए सही सा व्यक्ति। तो अर्जुन के पास जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी, भगवान कृष्ण उसके पास में थे। और कृष्ण ने, मैं विषय में प्रवेश करता हूं, कृष्ण ने उसके शोक को दूर किया है। और जब आप अध्याय 2 में हम लोग चर्चा में आएंगे, मैं आपके इसके सामने रखूंगा, अध्याय 2 का जो प्रारंभ है वो शोक से ही प्रारंभ होता है। और भगवान पहला ही स्टेटमेंट क्या देते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानु शोचन्ति पंडिताः। यही श्लोक हमारे लिए काफी है। पहला, एक गांठ बांध लीजिए, ऐसी जीवन की कोई समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए बोलते हैं नानु शोचन्ति। अर्जुन, जो पंडित लोग हैं, सब की बात नहीं कही, पंडित वह है जिसके जीवन में शोक नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा कि वो पीला अचला पहनता है तो त्रिपुंड लगाता है तो माला पहनता है तो जाति में पैदा हुआ है। ना 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 ना, भगवान ने पंडित शब्द नहीं कहा ऐसा। असली पंडित वही है जिसके जीवन में शोक नहीं है। तो जिसके जीवन में शोक है वो कौन है फिर? तो क्या कहूँ आपसे, शब्द कहने में शर्म लगती है। हम सब चतुर्थ वर्ण के, क्योंकि जीवन में शोक भरा पड़ा है। वो तो एक ही कोई बिरला है जिसके जीवन में, लेकिन ऐसा संभव है, यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अर्जुन, क्या बातें कर रहे हो? प्रज्ञावादांश भाषा से बातें बड़ी बड़ी करते हो तुम। ये शोक वाले का लक्षण है, बातें बड़ी बड़ी करता है और उसके खुद के जीवन में वो चीज देखने को नहीं मिलती। जनरली मैंने देखा 80%। आप बुरा मत मानना, ये बाल बुद्धि मेरी ऐसी। स्वामी जी जिससे चश्मा पहनने जाओ वो डॉक्टर खुद चश्मा लगाता है। मैं जिससे ब्लड प्रेशर की दवा लेने जाऊं वो खुद ही ब्लड प्रेशर की दवा लेता है। जो डायबिटीज का एक्सपर्ट है उसको खुद भी डायबिटीज बोल रहे, स्वामी जी मेटफॉर्मिन 500 तो ले ही लेता हूँ किसी हालत में। सी ले, आप क्यों ले रहे हो भाई? बोले ये मत पूछिए, कोई बचा नहीं है। तो शरीर के रोग तो अलग हैं, आपसे बताऊं, लेकिन भगवान का कितना सुंदर कर है। नानु शोचन्ति पंडिताः। पंडित वो है जिसके जीवन में शोक नहीं है। और आपके मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर पंडित कौन है? परिभाषा क्या है? तो प्रथम दिन से आपको परिभाषा देके चलता हूं आगे। सद असत बुद्धि विवेक जिसके अंदर में है, बस इतना ही। जिसके अंदर सत और असत का विवेक करने की क्षमता है। चलो, क्या चीज ठहरेगी, क्या चीज नहीं ठहरेगी, कम से कम ये विवेक तो कर लो। जिसके पीछे दौड़े जा रहे हो वो ठहरेगी नहीं। ये धन किसी का हुआ नहीं है, ये यश किसी का हुआ नहीं है, ये पद किसी का हुआ नहीं है। किसके पीछे भाग रहे हो तुम? सत असत विवेकिनी, इसको बोलते हैं पंडा बुद्धि। ये शाम जिसमें ये होती है सह पंडितः। और उसके लिए देखो, एक पंडित नहीं बोला, ध्यान से देखना,
अशोच्यानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। फिर गतासून गतासून नानुशोचन्ति पंडिताः। एक वचन नहीं, बहुवचन है। इसका मतलब ये संभव है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में शोक नहीं है। उसका रास्ता चुनने की जरूरत है। कौन रास्ता देगी? बस आज इस बात पर बोलकर फिर समाप्त करता हूं। इसका एक रास्ता तो मैं आपको कह सकता हूं, इसका जो सूत्र है, ये जीवन में आपके पास होए तो बहुत कुछ चीजों से आप बच सकते हो। दैट इज श्रीमद् भगवत गीता। बट इसको देखने की दृष्टि होनी चाहिए, वरना ही बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, इसके लिए स्टार्टिंग में इसकी महत बुद्धि जागृत करने के लिए बोल रहा हूं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा अम्ब शब्द। क्या बोला? अम्ब। अम्ब मतलब मां। ध्यान रखिएगा, गीता के प्रति जो बुद्धि पालिएगा वो कौन सी बुद्धि है? मां। थोड़ा दृष्टि, ये कपड़े में बांध कर और उस पर धूल धाड़ लगा कर और हमने कर दिया, वो ग्रंथ बुद्धि नहीं जागृत हुई अभी आपकी। और आपसे क्या बताऊं, हम हिंदुओं की सबसे दुर्दशा यही है। दुर्दशा है हम हिंदुओं की कि हम उसको झाड़ पोंछ कर अलमारी में रखते हैं। आज अभी आपने सुना गुरुदेव के बारे में, लोगों के घर घर तक हर कमरे में पहुंचाने वाला जो शख्स था, दैट ओनली वन पर्सन, दैट इज चिन्मयानंद। वरना तो ये पूजा घरों में रखी थी, इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमको संस्कृत नहीं आती, इसलिए तुम नहीं पढ़ोगे। बट एक व्यक्ति था जिसने घर घर पे पहुंचा दी गीता। मैं आपसे कहूंगा, इसलिए उसकी बुद्धि जागृत कीजिएगा। उसका नाम है अम्ब, मां। देखो, मैं क्यों कह रहा हूं, बस ये कहना चाहता था आपके सामने। ये जो मां है ना, ये 2-3 काम करती है मां। और उससे तुलना कीजिएगा भगवत गीता की। बस मैं ये चाह रहा हूं, मां की तुलना किससे कीजिए? गीता से कीजिए। एक तो मां शिशु को जन्म देती है, पहला सिद्धांत। जो ना है भैया खूब पूछिएगा प्रेम से, ये मत सोचिएगा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। और आप तो जो मन चाहे खूब पूछिए, बस समझ में आना चाहिए। और कल से इस गीता को ना अपने साथ में रखिए जरा, तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। स्त्री मां का जो पहला है, तो कोई स्त्री में भी मां, स्त्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन मां का दर्जा उसको दिया गया जो किसी बच्चे को जन्म देती है। अच्छा, जन्म ही नहीं देती, उस बच्चे का पालन करती है, उसका संवर्धन करती है। तो कितने काम हो गए? 2 काम तो इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो जन्म देना, दूसरा क्या करना? पालन करना। हमें रेड ना, संहार करने का काम तो पिता करता है, फिर तो वो तड़ातड़ करता है। ये काम माँ का कम है। माँ जन्म देगी, पालन करेगी, ये 2 काम हैं माँ के। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, भगवत गीता सिर्फ यही करती है। यदि आपके अंदर, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये हमारे गुरु जी का पेट विषय था, हम सभी के अंदर एक आध्यात्मिक शिशु है तो जरूर, तभी तो गिल्ट फीलिंग आती है ना। किसी किसी को वो भी नहीं आती, तो उसके लिए क्या कहा जाए? हम गलत काम कर बैठे, ठीक है, लेकिन गिल्ट फील तो आती है कि मैंने गलत किया। ये गिल्ट फीलिंग किसके कारण आई? कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शिशु हम सब के अंदर है, गर्भ में।
उस शिशु का पालन करने का काम कौन करेगी? गीता। यदि आपने इसको हाथ में ले लिया तो निश्चित जानिए, यदि अंदर आपके शिशु है, आपके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक शिशु है, तो उसका पालन करने का काम किसका है? गीता का। बोले मेरे अंदर नहीं है, तो जन्म देने का काम भी कौन करेगी? गीता। अगर आप इसके सत्संग को सुनते रहते हैं तो आज नहीं तो कल 9 महीने बाद आपके अंदर भी प्रसव पीड़ा होएगी और छोटे से बच्चे का जन्म होगा और उसका नाम होगा शिशु। ये श्रीमद् भगवत गीता बच्चे को जन्म देती है, आध्यात्मिक शिशु को, और उसको पालती भी। अच्छा, एक वाक्य करता हूं। एक टर्म अभी बहुत यूज होता है इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, इट्स कॉल्ड नेचुरल लाइफ। नेचुरल लाइफ में हिंदी में क्या बोलेंगे आप उसको? प्राकृतिक जीवन। हमारे गुरु महाराज जी बार बार कहते थे इसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक प्रकृति ने आपको नंगधड़ंग पैदा किया था। प्रकृति ने आपको नंगधड़ंग पैदा किया था, लेकिन जैसे ही पुत्र या पुत्री पैदा होता है तो हमारे सनातन संस्कृति में तुरंत उसको मां लंगोटी पहना देती है। और जो लोग और अच्छा सुनते हो, नाम तो नहीं लेना चाहिए स्वामी जी, लेकिन फिलोसोफर रहा है जो रजनीश, कहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रख रहा हूं। उसने एक बहुत सुंदर कथन कहा कि वासना, मनोज जी, वासना को भगाना है तो नंगे रहो। तो जहां जहां नंगे आपके वेस्टर्न में रहे वहां वासना दूर हो गई। आप क्या आप ये कहते हो वेस्टर्न जगत में इसलिए नहीं, वहां दूर हो गई। आपके यहाँ तो हर एक व्यक्ति के कितने सारे संबंध है फिजिकल, आपकी वासना दूर हो गई। 70 साल में भी दूर हो गई क्या? नंग दड़ंग रहने से बोले कि आप अंग प्रत्यंग देख लो, खुल के देख लो, इससे वासना निकल जाएगी। जी, वासना नहीं निकलती। आपका ऋषि कहता ना, ये वासना का ये तरीका नहीं है। हमारे वासना का तरीका दूसरा है। भगवान शंकराचार्य जी ने देखो कैसा बोला इसको दूर करने का साधन। ये अभी युवकों को पढ़ा रहा था मैं, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। नारी स्तन भर नाभि देशम, नारी स्तन भर नाभि देशम, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन मांस वसादि विकारम, एतन मांस वसादि विकारम, मनसि विचिन्तय बारं बारं, मनसि विचिन्तय बारं बारं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, मनसि विचिन्त्य बारं बारं। आपको क्या लगता है एक बार में निकल जाएगी ये वासना? सच्चाई ये नहीं है, साधु की भी नहीं निकलती स्वामी जी, कहने की बात है। दिन रात उसको किसी बड़े के अधीन में रहना पड़ता है, अपनी वासना पर नियंत्रण पाना पड़ता है। सच्चाई ही है, आपसे बताऊं। हम सोचे कि हम स्वतंत्र कमरे में रहकर इसको जीत लेंगे। महाराज, किसको मूर्ख बना रहे हो?
इसलिए आप वो नहीं बन पाए जो बनना चाहिए। रजनीश नहीं बोला कि ये इसको देखने मात्र से नंग धड़ंग रहने से, ना ना ना। सनातन धर्म कहता है नहीं, प्राकृतिक जीवन श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर आप क्या कहते हैं? कल्चरल लाइफ। प्राकृतिक जीवन के बदले में क्या कहा गया? सांस्कृतिक जीवन। थोड़ा कल्चर्ड बनिए। बोले मुझे आपकी बात समझ में नहीं। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं, वेद का उदाहरण देता हूं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन में मनोज जी एक प्रश्न आता है सबका कि मन बड़ा चंचल है, और हम लोगों को आदत हो गई इसको सुनने की। मैं तो ये कहता हूं मेरा भी चंचल है। किसका नहीं है चंचल? वो बोलता है, झूठ बोलता है। बोले आप ऐसा बोल रहे हैं? अरे आपको मैं प्रूफ दे रहा हूं वेद का। शोभावः मर्तस्य यदंत कैतद सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। और कह दूं, वेद कठोपनिषद की श्रुति कहती है परांचिखानी व्यतड़त स्वयंभू, है ना स्वामी जी? अभी तो आप कठोपनिषद की देख रहा था किताब। परांचिखानी व्यतड़त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। आप सच्चाई तो देखिए, वेद कह रहा है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? बहिर्मुखी हैं। वेद स्वीकार कर रहा है इसको। हमारी इंद्रियां, हमारा मन कैसा है? बहिर्मुखी। तो इसमें इतना गिल्ट फील पालने की क्या बात है? लेकिन कल्चरल लाइफ कहती है ये जो बहिर्मुखी है इसको तुम चाहो तो अभ्यास के जरिए से अंदर ला सकते हो। बहिर्मुखी इसलिए परांग पश्यति न अंतरात्मन। लेकिन लोग अभ्यास के बल पर, मेहनत के बल पर, साधना के बल पर वो जो बहिर्मुखी मन है उसको कहां ले आते हैं? अंतर्मुखी। दैट इज कॉल्ड साधना। मन तो चंचल ही है। जैसे ही आप माला लोगे, ये लेके देखना आप, और इतना हम लोग तो डेली इसके शिकार होते हैं, आपसे बताऊं, और आपको अपनी स्थिति बताने में कोई देर नहीं। स्वामी जी, मनोज जी, ये धोखा देखना आप जब आसन पे बैठते हैं तो फिर नींद आने को तैयार होती, फिर काम दिखता है बहुत सारा। और जैसे ही आसन से हट के बिस्तर पे आ जाओ, सोना चालू कर दो, तब नींद नहीं आती है। अभी तो नींद दिखा रहा था मन, बिस्तर पे नींद नहीं आ रही है, आसन पे नींद आ रही है। ये कौन खेल रहा है हमारे साथ में? ये है मनीराम। समझना जरा आप इनको। यहीं पे 10 कदम पर आसन पे जब कहा गया आसन पर बैठकर जप करो, तो फिर दुनिया भर के परपंच चल रहे हैं। थक गया हूं, नींद आ रही है, फलाना है, ढिमकाना है। अच्छा सो जाओ, सो नींद नहीं आ रही है। मन स्वभाव से ही बहिर्मुखी है। साधना ये है, हाँ जी, कि उसको अंतर्मुखी किया जाए। एक उदाहरण और देखिए, यदि आपको किसी ने अपशब्द कहे और आपने भी उसको अपशब्द कह दिया, तो ये बहिर्मुखी तो स्वाभाविक है। आप गाली दोगे तो आपको गाली मिलेगी, स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज है, किसी ने आपको अपशब्द कहा लेकिन आपने उसको अपशब्द नहीं कहा। दिस इज कॉल्ड कल्चरल लाइफ। आपने संयम किया, मन में आ रही थी लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। ये मान में आपने क्या किया? संयम। दिस इज कॉल्ड साधना। दो तरीके की लाइफ है, एक नेचुरल प्राकृतिक, एक कल्चरल सांस्कृतिक।
ये साधना का क्षेत्र है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, जो कल इस विषय को उठाऊंगा। यदि समस्या का सॉल्यूशन चाहते हो तो पहला एक काम करो, बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन। ध्यान रखिएगा, मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल मतलब आप दाढ़ी बढ़ा लो, चंदन रख लो और माला पहन, ये सब ड्रामा है। ये रावण ने भी ये किया था। मेरी नज़र में दैट इज नॉट आध्यात्मिक व्यक्ति। बहुत सारे लोग मिले, कुंभ में मिले ही होंगे अभी बहुत सारे लोग, और ठगी का धंधा हो रहा था। इट इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। एक मान्यता का नाम स्पिरिचुअल लाइफ है एक्चुअली में, एक नोशन का नाम स्पिरिचुअलिटी है, नॉट की एक्शन का नाम स्पिरिचुअल लाइफ है। इस विषय को मैं जरूर आपके सामने कर रखना चाहूंगा और फिर इस समस्या को देखता हूं शुरुआत से। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आज प्रथम दिन था, आपका धन्यवाद। आइए आरती कर फिर इस सत्र का समापन करें। हरिओम। 1967 में गुरुदेव को पहली बार कानपुर लाने का श्रेय कानपुर नगर के विभूति बैरिस्टर हमारे भी